In this class, we are going to study about the pollen pistil interaction and also a bit about artificial hybridization. So, pollen pistil interaction is the event which occurs right after the pollination. That is, this event that we are going to study now occurs after pollination. So, we can say that it is a post-pollination event in reproduction of flowering plants. So it occurs just after pollination. So we had seen that what is pollination, that is transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower, that is self pollination, or to the another flower of a genetically different plant, that is called as cross pollination. So in either case what happens is that a pollen grain will be transferred to a stigma of the same species, maybe genetically similar, maybe genetically different. So we are going to see what happens after a pollen grain lands on a compatible stigma or of the same species. So we are going to study what happens in any stigma, in any pollen grain after both meet, yani ki when the pollen grains are transferred to the stigma surface. So we are going to first understand what is this pollen pistil interaction. So this is the events from pollen deposition on the stigma to the entry of pollen inside the ovule. So we have seen कि pollination के लास्ट में क्या हुआ था, स्टिग्मा पर pollen grain deposit हो गया. pollen grain के deposit होने के बाद वाला जो event से ले करके ovule तक जो pollen tube enter करता है, that is called as pollen pistil interaction. That is, right after the pollen grain has landed on the stigma, then the pollen tube will grow, then the pollen tube will cross the stigma, style, and then the ovary, and then it will reach the ovule and finally into the embryo sac. So this event is called as pollen pistil interaction. So it extends from the landing on the stigma and then the pollen tube until that reaches its ovule. So this is what is pollen pistil interaction, or these are the events which occur during pollen pistil interaction. So यहाँ पर इन दोनों प्रोसेस यानी कि स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद से लेकर के पॉलन ट्यूब के अंदर, पॉलन ट्यूब के जो ग्रोथ की वजह से जो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर पहुंच जाता है, वहां तक के सारे इवेंट को पढ़ने हैं. तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो जो प्रोसेसेस होते हैं हमें वो पढ़ना है. तो सबसे पहले जो इवेंट होता है वो है कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन. So in this case what happens is that when the pollen grain is compatible, यानी कि यहाँ पर pollen grain अगर उसी स्पीशीज का होगा जिस स्पीशीज का स्टिग्मा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का चांसेस होता है. लेकिन हमने पिछले क्लास में एक इवेंट पढ़ा था, दैट इज सेल्फ स्टेरिलिटी. तो सेल्फ स्टेरिलिटी में सिमिलर एलील्स वाले पॉलन ग्रेन्स को हम जर्मिनेट करने का अलाउंस नहीं देते हैं. दैट इज स्टिग्मा डज नॉट अलाउ द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट इफ इट हैज द सिमिलर एलील्स. That is, we had studied S1, S2, S3, S4, S5 and S6 and so on. So if either of the alleles match, pollen grain will be incompatible. तो अगर pollen grain में same allele है और वो सेम स्पीशीज का है तो भी वो पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल होगा. तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो सेम स्पीशीज का ही होगा. सेम स्पीशीज में भी अगर सेल्फ स्टेरिलिटी वाला केस है तो वहां पे सेम स्पीशीज का होने के बाद भी पॉलन ग्रेन जो है वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैटिबिलिटी के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो कि सेम स्पीशीज का होना चाहिए और दूसरा कि जो सेल्फ स्टेरिलिटी वाला फिनोमिनन है वो नहीं होना चाहिए. यानी कि सेम स्पीशीज का है तो भी अगर पॉलन ग्रेन आ गया सेल्फ स्टेरिलिटी वाला केस में तो फिर वहां भी इनकम्पैटिबिलिटी आ जाएगा. तो इनकम्पैटिबिलिटी में दो इश्यूज है, यानी कि अगर वो डिफरेंट स्पीशीज का है तो भी इनकम्पैटिबल, अगर सेम स्पीशीज का है तो भी अगर एक भी एलील मिल गया तो भी इनकम्पैटिबल हो गया. दिस इज व्हाट इज compatibility and incompatibility reaction. So what happens in this case is that the pollen grain will have certain proteins which might be called as antigens over them. For example, we had seen that a pollen grain has two layers. The inner layer is called as intine, the outer layer is called as exine. So exine is a bit rough. So we had seen this red one is the exine part and the green one is the intine part. So the compatibility reaction is occurring due to some proteins or some proteins, whether these are on the
pollen grain, exine or intine? This is important over here. So the proteins which are involved, that is reaction between proteins. So these proteins are located in the intine, that is the inner layer of the pollen grain, or this greenish layer. This is the greenish layer which is the intine, और यहीं पर ये वाले प्रोटीन्स होते हैं जिससे कि स्टिग्मा रिकॉग्नाइज करता है पॉलन ग्रेन को कि इसे जर्मिनेट करने देना है या नहीं जर्मिनेट करने देना है। तो यहां पर ये जो अंदर वाला इंटाइन है इसी के पास होता है वो प्रोटीन जिससे कि कंपैटिबिलिटी डिसाइड होने वाला है। सो स्टिग्मा के ऊपर भी सर्टेन प्रोटीन्स होंगे और पॉलन ग्रेन पर भी। तो स्टिग्मा के तो सरफेस पे वो प्रोटीन्स पाए जाएंगे क्योंकि स्टिग्मा तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। इन दैट केस व्हाट हैपेंस कि स्टिग्मा का प्रोटीन और इस पॉलन ग्रेन का अंदर वाला इंटाइन का प्रोटीन दोनों में मैचिंग पहले किया जाएगा, दोनों में कंपैटिबिलिटी डिसाइड किया जाएगा, और अगर वहां पे पता चलता है कि हाँ ये प्रोटीन्स कंपैटिबल है तो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने देगा। दैट इज द स्टिग्मा वोंट अलाउ द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट इफ द प्रोटीन्स आर नॉट कंपैटिबल। यानी कि यहां पर अगर ये जो ग्रीन वाले स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स हैं इस पार्ट में, तो स्टिग्मा क्या करेगा, उसे रिकॉग्नाइज करने के बाद पॉलन ट्यूब बनाने देगा, यानी कि यहां पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर स्टिग्मा अगर उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा कि यहां पर कैलोज प्लग बन जाएंगे। ये जो पॉलन ग्रेन है उसके जर्मपोर के पास में एक कैलोज का प्लग बन जाता है, दैट इज यहां पर एक प्लग बन जाएगा, और ऐसा ही प्लग बन जाएगा स्टिग्मा पर भी। तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन दोनों पर एक ओपेक या फिर एक ऑब्स्ट्रक्टिव लेयर बन जाता है जो कि कैलोज का बना हुआ होता है। तो इसकी वजह से पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो पॉलन ट्यूब ग्रो नहीं करेगा तो अल्टीमेटली विंड के वजह से या वाटर की वजह से या किसी भी और रीजन से पॉलन ग्रेन वहां पे या तो डीजनरेट कर जाएगा या फिर पॉलन ग्रेन कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा हवा की वजह से। तो यहां पर दो इवेंट हो सकते हैं, अगर कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी में प्रोटीन को सही रिकॉग्नाइज किया गया तो यहां पे पॉलन ट्यूब बनेगा, अगर नहीं होगा तो वहां कैलोज प्लग बन जाएगा, और कैलोज प्लग बनने के बाद जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, दैट इज पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। सो नाउ वी सी व्हाट इज द compatibility incompatibility reaction. So reaction between proteins present on the surface of pollen grains. तो pollen grain के surface पे तो दो लेयर है, इंटाइन एक्साइन, तो यहाँ पर वो प्रोटीन्स इंटाइन में पाए जाएंगे, एंड स्टिग्मा यानी कि स्टिग्मा के प्रोटीन और यहाँ पर जो pollen grain का इंटाइन का प्रोटीन है दोनों के बीच में रिएक्शंस होते हैं। अब इट कैन अलाउ और इनहिबिट जर्मिनेशन ऑफ pollen grain। तो अगर कंपैटिबल होगा तो पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन का परमिशन मिल जाएगा, नहीं होगा तो पॉलन ग्रेन में कैलोज प्लग बन जाएंगे, सो दैट विल इनहिबिट द जर्मिनेशन। नाउ वी कम टू द थर्ड पॉइंट, इफ द रिएक्शन इज फेवरेबल, यानी कि प्रोटीन्स के बीच में जो रिएक्शन हुआ है वो फेवरेबल है, तो पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा वाटर और न्यूट्रिएंट। यानी कि पॉलन ग्रेन कहां पर था, स्टिग्मा पर था, तो वाटर और न्यूट्रिएंट कहां से एब्जॉर्ब करेगा, स्टिग्मा पर से। तो स्टिग्मा पर से एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद, वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहां पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। अब पॉलन ट्यूब जो बाहर आएगा, तो हमने जब पॉलन ग्रेन पढ़ा था, वी हैड सीन इन दैट केस दैट एक्साइन इज द वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। तो एक्साइन में तो स्पोरोपोलिनिन था, तो अगर पॉलन ट्यूब को बाहर आना है तो एक्साइन तो उसके अंदर भरा हुआ है स्पोरोपोलिनिन जो कि सबसे रेजिस्टेंट होता है, तो वो तो अलाउ करेगा नहीं। लेकिन हमने पॉलन ग्रेन में पढ़ा था ना कि जहां एक्साइन एब्सेंट होता है उसे बोलते हैं जर्म पोर या जर्मिनल फरो। दो केसेस होते हैं जहां पर एक्साइन एब्सेंट होता है, तो वहां से तो बाहर आ सकता है ना पॉलन ग्रेन, दैट इज वी हैड जस्ट सीन दैट डायग्राम।
तो जहां जहां पर जो बाहर वाला रेड का लेयर है, जो मैंने एक्साइन को शो कर रहा है यहाँ पे, तो रेड लेयर इज द एक्साइन 1 और जो ग्रीन लेयर है वो इंटाइन है। सो जहां जहां पर एक्साइन एब्सेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं जर्म पोर। तो पॉलन ट्यूब यहां से बाहर आ सकता है, लेकिन पॉलन ट्यूब एक्साइन से बाहर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक्साइन में स्पोरोपोलेनिन है जो कि सबसे रेजिस्टेंट केमिकल है, तो फिर वो टूटेगा कैसे। तो इसीलिए उसे किसी ना किसी, या तो इस जर्म पोर से बाहर आ सकता है, या तो इस जर्म पोर से बाहर आ सकता है, या इस जर्म पोर से, वो किसी भी जर्म पोर से बाहर आ सकता है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें समझना होगा, एंड दैट इज, हमने पहले ही पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन में 2 लेयर है, एक्साइन और इंटाइन। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो पॉलन ट्यूब बन रहा है वो भी तो पॉलन ग्रेन से ही बन रहा है ना। तो जिस तरह पॉलन ग्रेन में 2 लेयर है, एक्साइन और इंटाइन, तो क्या पॉलन ट्यूब में 2 लेयर होंगे? सो दिस इज द क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर जो मेन फीचर ये है कि यहाँ पर एक्साइन नहीं होगा, दैट इज पॉलन ट्यूब इज कवर्ड ओनली बाय इंटाइन। पॉलन ग्रेन में दोनों होंगे, एक्साइन इंटाइन दोनों, लेकिन पॉलन ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ इंटाइन होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ पॉलन ग्रेन and the layers of pollen tube. That is, in the case of pollen tube we have only intine, pollen grain, intine plus exine both. Now we have to study a phenomenon called as siphonogamy. तो हमने देखा था कि जो हायर प्लांट्स होते हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जिसे हम मानते हैं, और वैस्कुलर प्लांट्स में टेरिडोफाइट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाता है, बट नॉर्मली जो ज़्यादा हायर प्लांट्स हैं वो हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म, जिन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पर इनमें एक कंडीशन होता है, दैट इज कॉल्ड एज सिफोनोगेमी। तो सिफोनोगेमी में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या थैलोफाइट्स जिसे हम एल्गा कहते हैं, तो इन तीनों में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। वहां ज़ूओआयोडोगैमी कहते हैं, जो आपने 11th क्लास में चैप्टर 3 यानी कि प्लांट किंगडम में पढ़ा होगा। वहां ज़ूओआयोडोगैमी होता है जिसमें कि जो मेल गैमीट होता है खुद जाता है फीमेल गैमीट के पास, तो दैट इज कॉल्ड एज ज़ूओआयोडोगैमी। लेकिन यहाँ मेल गैमीट तो इमोटाइल है। हमने पॉलन ट्यूब जब पढ़ा था, दैट इज पॉलन ग्रेन में, तो पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट्स होते हैं, तो वो तो खुद से मूव नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें पॉलन ट्यूब की मदद से ओव्यूल तक पहुंचाना पड़ता है। उन्हें पॉलन ट्यूब की मदद से पहुंचाना पड़ता है ओव्यूल के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहां तक। तो अगर किसी भी प्लांट में पॉलन ट्यूब की मदद से मेल गैमीट्स पहुंच रहे हैं ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक तक, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिफोनोगेमी, एंड इट अकर्स ओनली इन द केस ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म। दैट इज, हम कह सकते हैं कि ये जो सिफोनोगेमी है ये हायर प्लांट्स का फीचर है, मोर एडवांस्ड प्लांट्स का फीचर है। सो दिस इज व्हाट इज सिफोनोगेमी। तो पॉलन ट्यूब का बनना कह रहे हैं सिफोनोगेमी, तो जहां पर एक पॉलन ट्यूब बनेगा उसे बोलेंगे मोनोसिफोनोगेमी, उसे हम बोलेंगे मोनोसिफोनस, वैसे फ्लावर्स को या वैसे पॉलन ग्रेन्स को। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक पॉलन ट्यूब बना है, तो ये हो जाएगा मोनोसिफोनस का एग्जाम्पल। और यही जनरल होता है नॉर्मली, जो मोस्ट ऑफ द केसेस है ना, 80%, 90%, 95% केसेस, उन सभी में एक पॉलन ग्रेन में एक ही पॉलन ट्यूब बनेगा, यानी कि 1 पॉलन ट्यूब पर पॉलन ग्रेन। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, जैसे कि मालवेसी और कुकुरबिटेसी। इन दोनों एग्जांपल्स में, फॉर एग्जांपल वी हैव सीन हियर मालवेसी और कुकुरबिटेसी, यहाँ क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीसिफनस। यानी कि यहाँ पर 1 पॉलन ग्रेन था, 1 पॉलन ट्यूब था, यहाँ पर मल्टीपल, तो यहाँ पर 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 हो सकता है। इन द केस ऑफ मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी वी आर ऑब्जर्विंग 14 pollen tubes per pollen grain, so you can imagine how it occurs। तो अगर हम मल्टीपल pollen tubes की बात करें तो कहां से बाहर आएंगे, जो एक से ज्यादा germ pores होंगे वहां से बाहर आएंगे, like this also। तो germ pore यहां जरूरी नहीं कि 3 ही हो, बहुत सारे germ pore हो सकते हैं। तो अगर पॉलीसिफनस की बात करें तो अलग अलग जर्म पोर से अलग अलग पॉलन ट्यूब आएंगे, लेकिन अगर मोनोसिफनस की बात करें तो किसी एक ही पॉलन ट्यूब से एक ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है। और ये नॉर्मल केस है, सारे प्लांट्स में लगभग यही होता है, लेकिन पॉलीसिफनस एक्सेप्शन है
जैसे कि मालवेसी और क्यूक्यूबिटेसी में 14 पॉलन ट्यूब्स एक पॉलन ग्रेन से निकलते हैं। नाउ वी कम टू दिस पार्ट। तो हमने देखा कि पॉलन ट्यूब का बन गया, कैसे फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ग्रेन जो एब्जॉर्प्शन किया मॉइस्चर और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स का, उसके बाद पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ। तो पॉलन ट्यूब जब बन गया तो पॉलन ट्यूब तो स्टिग्मा पर बना है। पॉलन ट्यूब जस्ट जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर था तो वहीं पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। तो स्टिग्मा के नीचे स्टाइल है, स्टाइल के नीचे ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक है। तो पॉलन ट्यूब को उस स्टिग्मा से लेकर के जो स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल और एम्ब्रियो सैक तक पहुंचना है, तो इसे काफी ग्रोथ शो करना पड़ता है। सो पॉलन ट्यूब को ग्रो करना पड़ेगा वहां से, सिर्फ जर्मिनेशन से नहीं होगा। तो जब पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर गया तो वो ग्रो करने लगेगा। तो जब पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा तो सबसे पहले यहां दो चीजें होती हैं। इस अंदर वाले सेल के अंदर हमने देखा था कि दो सेल्स थे, एक को हमने कहा था जेनरेटिव सेल और दूसरे को कहा था वेजिटेटिव सेल। तो हमने देखा था कि ये दोनों सेल के साइज में बहुत डिफरेंस है। वेजिटेटिव सेल काफी बड़ा होता है साइज में और जो दूसरा जेनरेटिव सेल होता है वो काफी छोटा होता है, जो अंदर वाला छोटा होता है। अब जेनरेटिव सेल का भी अपना न्यूक्लियस होता है और इस वेजिटेटिव सेल का भी अपना न्यूक्लियस होता है। तो जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा तो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस दोनों चले आएंगे कहां पर, तो पॉलन ट्यूब में, और आगे रहेगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, उसके पीछे रहेगा जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। यानी कि यहां पर अगर हम पॉलन ट्यूब की बात करें तो इन दोनों का न्यूक्लियस आ जाएगा यहां पर। तो आगे वाला न्यूक्लियस हो जाएगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और पीछे वाला न्यूक्लियस हो जाएगा जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। और थोड़े टाइम के बाद जब पॉलन ट्यूब और ग्रो कर जाएगा लाइक दिस, जब पॉलन ट्यूब और ग्रो कर जाएगा तो आगे रहेगा जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, लेकिन आगे रहेगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, लेकिन जो जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आया था वो डिवाइड करके दो मेल गैमेट्स बन जाएगा। यानी कि ये दो मेल गैमेट्स बन जाएंगे और आगे रहेगा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। दिस इज द वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस। और ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये पॉलन ट्यूब में जाने के बाद डीजेनरेट करने लगता है। दैट इज ये ज्यादा आगे तक सरवाइव नहीं करेगा। इसका ये फंक्शन ही है कि ये आगे जाने के बाद डीजेनरेट कर जाएगा, ये आगे तक बहुत आगे तक सरवाइव नहीं करेगा। यानी कि जब पॉलन ट्यूब पूरा ग्रो कर जाएगा तो इसके अंदर दो ही न्यूक्लियस होंगे, यानी कि दो मेल गैमीट के जो न्यूक्लियस होंगे वही पाए जाएंगे। ये वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस आगे जाके डीजेनरेट कर जाएगा। सो ओनली दीज टू मेल गैमीट्स विल बी देयर। सो पॉलन ट्यूब जो है उसको ग्रो करना है स्टिग्मा से लेकर स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक तक। तो उसे स्टिग्मा को क्रॉस करना होगा, स्टिग्मा के सेल्स को पियर्स करना होगा, फिर स्टाइल को भी तो पियर्स करना होगा ना। तो यहाँ पर स्टाइल के अंदर देयर आर सर्टेन सेल्स जिसे हम कंडक्टिंग टिश्यू कहते हैं। तो वैसे टिश्यूज को ये पियर्स करेगा, लेकिन उसके लिए इसे कुछ ज़रूरी होता है। और ज़रूरी क्या है, तो वो ज़रूरी सब्सटेंस को कहते हैं पेक्टिनेज। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्लांट के सेल्स के बीच में एक कैल्शियम पेक्टेट का लेयर होता है, ठीक है। सो कैल्शियम पेक्टेट का जो लेयर होता है वो सेल्स को बाइंड करके रखता है। तो पॉलन ग्रेन को उनके बीच में से गुजरना है। अगर स्टिग्मा, अगर जो हमारा स्टाइल है वो सॉलिड है, सपोज करते हैं कि ये स्टाइल है हमारा एक, अगर ये स्टाइल सॉलिड है यानी कि इसके अंदर जगह नहीं है, सेल से भरा हुआ है इस तरीके से, तो पॉलन ट्यूब कैसे जाएगा? पॉलन ट्यूब को तो प्रॉब्लम होगा। जो पॉलन ट्यूब यहां पर बना था उस पॉलन ट्यूब को अंदर जाना है। तो जब तक यहाँ के सेल्स का वो कनेक्शन तोड़ेगा नहीं, यानी कि सेल्स के बीच में जो कैल्शियम पेक्टेट का लेयर है उस लेयर को जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तब तक ये नीचे जा नहीं सकता है। लेकिन अगर स्टाइल हॉलो होगा तो कोई इशू ही नहीं है। तो सॉलिड स्टाइल के केस में
कैल्शियम पेक्टेट का जो लेयर होता है प्लांट सेल्स के बीच में, उस कैल्शियम पेक्टेट को या पेक्टेट को डाइजेस्ट करने के लिए इसके पास है पेक्टिनेज, यानी कि जो पेक्टिन का लेयर होता है उस पेक्टिन का लेयर को ये डाइजेस्ट करेगा। तो जो सेल्स होंगे ना, सेल्स अलग अलग हो जाएंगे, तो ये इंटरसेलुलरली ट्रांस जाएगा। हम वो थोड़ी देर बाद अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंटरसेलुलर जाएगा, वो कैसे जाएगा और कैनाल के थ्रू जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि ये पेक्टिनेज क्यों सीक्रेट करता है, ताकि सेल्स के बीच का पेक्टिन को डाइजेस्ट कर सके और वो वहां से पास ऑन कर सके। इस लाइक कि काफी भीड़ है, तो अगर किसी इंसान को उसमें से भीड़ में से ट्रैवल करना है, तो जब तक लोग सेपरेट नहीं करेंगे आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो पॉलिन ट्यूब कैसे ट्रैवल करेगा स्टिग्मा स्टाइल के थ्रू, अगर वहां पे बीच में सेल्स भरे हुए हैं। तो सेल्स को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये पेक्टिनेज को सिक्रीट कर रहा है, ताकि पेक्टिन का लेयर ये डिस्ट्रॉय कर सके। Now for creating intercellular passage and other hydrolytic enzymes for nourishment, हमने जब पॉलिन ग्रेन पढ़ा था तो पॉलिन ग्रेन में हमने वेजिटेटिव सेल के बारे में ये पढ़ा था कि वेजिटेटिव सेल के पास बहुत सारा फूड रिजर्व होता है। लेकिन क्या वेजिटेटिव सेल के पास इतना फूड रिजर्व होता है कि पॉलिन ट्यूब को स्टिग्मा से लेकर एम्ब्रियो सैक तक पहुंचा दे? तो इतना नहीं होता है। एक्चुअली में जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है पॉलिन ग्रेन के अंदर, उसके पास इतना ही न्यूट्रिएंट होता है कि वो पॉलिन ग्रेन का जर्मिनेशन करा दे और थोड़ा सा पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करा दे। तो जब वो पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करा देता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा, तो उसके बाद पॉलिन ट्यूब खुद ही एक नया एंजाइम सिक्रीट करने लगता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है कोई एक एंजाइम नहीं है, इट इज अ कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स। अलग अलग, प्रोटीन के लिए अलग, कार्बोहाइड्रेट के लिए अलग, फैट्स के लिए अलग, या प्लांट के केस में ऑयल्स के लिए अलग। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेंगे कि स्टाइल के अंदर जो सेल होगा उस सेल को डिस्ट्रॉय करेगा या उसके न्यूट्रिएंट्स को ये डाइजेस्ट करेगा और डाइजेस्ट करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो पॉलिन ट्यूब को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है वो न्यूट्रिशन वो स्टाइल के सेल से ले रहा है। लेकिन कैसे ले रहा है? तो स्टाइल के सेल्स पर वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को सिक्रीट कर देगा, तो वहां पर डाइजेस्ट हो जाएंगे उसके जो भी कंटेंट्स होंगे सेल के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, ऑयल्स डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इन न्यूट्रिएंट्स को पॉलिन ट्यूब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उससे पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ हो जाएगा। यानी कि इनिशियल ग्रोथ जो पॉलिन ट्यूब का होगा वो खुद के न्यूट्रिएंट से होगा, यानी कि वेजिटेटिव सेल के न्यूट्रिएंट से। लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ के बाद पॉलिन ट्यूब का ग्रोथ एम्ब्रियो सैक तक किसके न्यूट्रिशन की वजह से होगा? तो पिस्टिल, यानी कि पिस्टिल का जो पार्ट हो गया स्टाइल, या फिर नीचे में हम देखेंगे ऑब्ट्यूरेटर एक टिश्यू आने वाला है थोड़ी देर बाद। तो इसका जो ग्रोथ है वो पिस्टिल के न्यूट्रिशन पे डिपेंड कर रहा है स्टार्टिंग ग्रोथ के बाद। तो उसी के लिए इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। तो पहली चीज, सेल्स के बीच का कनेक्शन हटाने के लिए पेक्टिनेज, और उन सेल्स से न्यूट्रिशन लेने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, फॉर नरिशमेंट। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से जो वो डिस्ट्रॉय कर रहा है या डाइजेस्ट कर रहा है उसे वो लेगा, तो उसे हम नरिशमेंट कहेंगे। नाउ पॉलिन ट्यूब ग्रोज कीमोट्रॉपिकली। अब 11th क्लास में भी आपने ये पढ़ा होगा कि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है। तो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ होता है। तो जिस भी मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होता है उसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं, और जिसमें ग्रोथ नहीं इन्वॉल्व होता है उसे हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये दोनों टाइप के मूवमेंट आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। तो यहाँ पर ट्रॉपिक है, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ इन्वॉल्व होगा, और उसके आगे लगा है कीमोट्रॉपिक। तो आपने 11th क्लास में फोटोट्रॉपिक भी सुना होगा, जिसमें कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो सकता है तो लाइट की तरफ ग्रोथ होता है। जैसे स्टेम जो है वो लाइट की तरफ ग्रो करता है, तो उसे हम बोल सकते हैं फोटोट्रॉपिक ग्रोथ या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। जो हमारा रूट्स होता है, प्लांट्स का जो रूट्स होता है वो रूट सॉइल की तरफ ग्रो करता है, तो उसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिक, या फिर उसे हम नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि लाइट के उल्टे डायरेक्शन में रूट जाता है और लाइट की तरफ शूट जाता है। तो शूट हो गया फोटोट्रॉपिक, रूट हो गया नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक या पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक।
तो ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ इन्वॉल्व होता है और जो नेस्टिक मूवमेंट होता है उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पर है कीमोट्रॉपिक, यानी कि यहाँ पर जो ग्रोथ होगा वो केमिकल की तरफ होगा, कोई एक सर्टेन केमिकल आएगा जो कि उसको अपनी तरफ ग्रो करने के लिए स्टिम्युलेट करेगा। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो कीमोट्रॉपिक है। अब कौन से केमिकल हैं? वो हैं कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कैल्शियम, कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल। इनोसिटॉल एक विटामिन की तरह सब्सटेंस होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये एक तरह का शुगर है। तो वी नो दैट ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो इनोसिटॉल है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये एक तरह का शुगर भी है। सो यहाँ पर जो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है वो किस केमिकल की वजह से हो रहा है? तो वो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से हो रहा है। उस कॉम्प्लेक्स में 3 चीजें हैं, कैल्शियम बोरॉन एंड इनोसिटॉल। तो ये तीनों जो केमिकल हैं ओवरी सिक्रीट करता है। ओवरी में सर्टेन टिश्यूज होते हैं, वो इन केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं और ये पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं नीचे की ओर ग्रो करने के लिए। यानी कि जैसे जैसे पॉलन ट्यूब नीचे की ओर आता है तो उसे इन केमिकल्स का इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन मिलता है। तो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन वेरी करता है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहां पर भी इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि इंक्रीजिंग ग्रेडियंट कह सकते हैं ऑफ व्हाट? ऑफ कैल्शियम बोरॉन इनोसिटॉल शुगर कॉम्प्लेक्स। तो ओवरी सिक्रीट कर रहा है तो ओवरी के पास सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा और ओवरी होता है नीचे। फिर धीरे धीरे केमिकल्स ऊपर की ओर कम होते जाते हैं, तो ऊपर वाला पार्ट यानी कि स्टाइल का ऊपर वाला पार्ट में ये केमिकल्स कम होंगे। तो अगर ओवरी इनको सिक्रीट ना करे, यानी कि अगर हम किसी केमिकल मेथड से ओवरी को स्टॉप कर दें कि ये केमिकल का सिक्रीशन ना करे, तो ओवरी जो है उसमें इस केमिकल के सिक्रीशन नहीं होने की वजह से पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं करेगा। सो दिस इज हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस केमिकल इज, यानी कि पॉलन ट्यूब के ग्रो करने के लिए इन केमिकल्स का होना मस्ट है। साइंटिस्ट ने इन केमिकल्स का सिंथेसिस रोक के देखा है ओवरी के अंदर। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने इस केमिकल का सिक्रीशन रोक दिया ओवरी में, तो पॉलन ट्यूब ग्रो ही नहीं किया। यानी कि इन केमिकल्स का प्रेजेंस इज एक्सट्रीमली वाइटल फॉर द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। Pollen tube will not show any growth if these chemicals or their concentration or their gradient is absent in the pistil. So this is how much important it is. और इसमें एक और कॉपर कंटेनिंग केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं कीमोसियानिन। सो जनरली जिस सब्सटेंस में कॉपर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें सियानिन वर्ड का हम यूज़ करते हैं। जैसे ही एक और नाम है हीमोसियानिन, उसमें भी कॉपर होता है। और यहाँ पर कॉपर कंटेनिंग एक और केमिकल है जिसे हम कहते हैं कीमोसियानिन। तो इन केमिकल्स के साथ साथ कीमोसियानिन का भी रोल होता है इसको अट्रैक्ट करने में, यानी कि पॉलन ट्यूब को नीचे की ओर ग्रो कराने में। इन तीनों सब्सटेंस के अलावा कीमोसियानिन का भी थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, उसके बाद है इनोसिटॉल, यानी कि एक शुगर है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट भी है। अब आते हैं आफ्टर वेजिटेटिव एंड जनरेटिव न्यूक्लियाई एंटर पॉलन ट्यूब फर्दर ग्रोथ अकर्स ओनली एट इट्स टिप। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने यहां पर देखा कि पॉलन ट्यूब जो ये पॉलन ट्यूब बन रहा था तो जब इनिशियल ग्रोथ हुआ था पॉलन ट्यूब के अंदर, तो उस समय सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस आया, उसके बाद आया जनरेटिव न्यूक्लियस। तो जब एक बार वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब में आ गया, तो उस समय के बाद इस पूरे पॉलन ट्यूब में ग्रोथ नहीं होगा, इसके टिप पे ग्रोथ होगा। यानी कि जो हमारा इसका लास्ट पोर्शन है, ये पोर्शन ओनली यही टिप इलोंगेट करते जाएगा, ना कि ये पूरा ग्रो करेगा। ये पूरा ग्रो नहीं करता है, बस यही वाला टिप ग्रो करते जाएगा। यानी कि जो नया ग्रोथ है इसी टिप पर होगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा ग्रोथ होगा, फिर इस टिप पे थोड़ा सा ग्रोथ होगा, फिर इस टिप पे थोड़ा सा ग्रोथ होगा, और ऐसे करके ये इलोंगेट करेगा। इट इज नॉट कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्रो करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट वाला पोर्शन है ग्रोथ वहीं पर हो रहा है। और इसको फॉलो करते जाएगा ये दोनों न्यूक्लियस, जो जनरेटिव सेल का और ये वेजिटेटिव सेल का, और ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस उसको फॉलो करते जाएगा धीरे धीरे।
सो दिस इज हाउ द ग्रोथ अकर्स। तो अभी तक हमने देखा कि स्टाइल के अंदर ग्रोथ कैसे होता है, तो हम स्टाइल में थोड़ा सा और देखेंगे कि स्टाइल के अंदर सॉलिड स्टाइल और जो हॉलो स्टाइल होता है उन दोनों में कैसे पॉलन ग्रेन का ग्रोथ होगा और फिर ओवरी के अंदर पॉलन ग्रेन का ग्रोथ कैसे होता है। नाउ वी विल सी दैट। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ द पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड or through a hollow style. So style could be solid or hollow depending whether the cells are present in between the walls or not. So first of all हम hollow style के बारे में देखेंगे। तो hollow style के केस में it's very simple, अगर जो हमारा स्टाइल है वो hollow है और उसके ऊपर ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन होता है, तो हॉलो पर बहुत इजीली ट्रैवल कर सकता है। हमारे जो पॉलन ट्यूब है वो कैनाल के अलोंग, यानी जो एम्प्टी स्पेस है ना उसके अलोंग पॉलन ट्यूब ट्रैवल करेगा, यानी कि इस साइड से भी हो सकता है या इस साइड से भी पॉलन ट्यूब ग्रो कर सकता है। सो ये होता है जो हमारा हॉलो स्टाइल, यानी कि जिसके बीच में सेल्स नहीं होते हैं, उनमें कैनाल सेल्स के थ्रू पकड़ के ही चलता है ये, यानी कि जो लार्ज सेल्स है ये कहाँ होते हैं, जो हॉलो स्टाइल है उसके कैनाल पे, यानी कि जो साइड्स है ना वहां पर कुछ बड़े बड़े सेल्स पाए जाते हैं, तो उन सेल्स के अलोंग ये ट्रैवल करता है इन द केस ऑफ अ हॉलो स्टाइल, क्योंकि बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं होता है। और ये जो कैनाल सेल्स होते हैं या फिर जो लार्ज सेल्स हैं कैनाल के, ये इसे न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं साथ साथ, यानी कि पॉलन ट्यूब इनसे न्यूट्रिशन भी लेता है। लेकिन अगर जो हमारा स्टाइल है वो सॉलिड है, यानी कि जो हमारा स्टाइल है अगर वो सॉलिड है, तो वहां पे यानी कि बीच में सेल्स भरे हुए हैं यहां पर, तो यहां पर पॉलन ट्यूब को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन यहां पर क्या करेगा पॉलन ट्यूब की सिक्रीट करेगा अपना पेक्टिनेज। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि पेक्टिनेज क्या करता है, सेल्स के बीच का वॉल को हटा देता है। तो यहाँ से ये धीरे धीरे ये वॉल्स जो है ना सेल्स सेपरेट करते जाएंगे ऐसे, और उन एंजाइम्स की वजह से सेल्स आगे भी सेपरेट करते जाएंगे और जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब है, वो ऐसे ग्रो करते जाएगा। सो यहाँ पर स्टाइल के अंदर कुछ बहुत ही थिक वॉल्ड सेल होते हैं जिनका कि बहुत ही थिक पेक्टिन का लेयर होता है, थिक वॉल्ड पेक्टिनाइज्ड कंडक्टिंग और ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो जब स्टाइल जो है वो सॉलिड है, जिसके बीच में सेल्स पूरे अच्छे से पैक्ड हैं, भरे हुए हैं, तो वहां पर जो बीच वाला एरिया होता है या कुछ टिश्यूज होते हैं वहां पर, जिसे हम कंडक्टिंग या ट्रांसमिटिंग टिश्यू कहते हैं। इनका फीचर क्या है, इनका फीचर ये है कि इनके सेल्स का जो पेक्टिन का लेयर होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, तो ये नरिश करते हैं और साथ साथ पॉलन ट्यूब को गाइड भी करते हैं कि उसे किस तरफ ग्रो करना है। तो ये दोनों चीज यहाँ पर हो रहा है। नाउ जो हम स्टाइल है, हमने पढ़ा था पिस्टिल के अंदर कि पिस्टिल के 3 पार्ट थे, ऊपर में स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, नीचे में ओवरी। तो हमने देखा कि स्टिग्मा पर वो कैसे जर्मिनेट किया था पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन में, और कंपैटिबिलिटी इनकंपैटिबिलिटी रिएक्शन देखा हमने कि स्टिग्मा पे हुआ। फिर हमने देखा कि स्टाइल से कैसे ट्रेवल किया, तो स्टाइल के नीचे क्या होता है, ओवरी। सो जो हमारा पिस्टिल है उसका बेसल पार्ट को क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं ओवरी। तो उस ओवरी के अंदर भी एक स्पेशल टिश्यू होता है एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूरेटर। तो ये जो ऑब्ट्यूरेटर होता है वो ओवरी का टिश्यू होता है जो कि पॉलन ट्यूब को नरिश भी करेगा और उसको गाइड भी करेगा कि कहाँ है ओव्यूल या कहाँ आपको ट्रैवल करना है, किधर आपको जाना है। तो ऑब्ट्यूरेटर हो गया ओवरी का वो टिश्यू जो पॉलन ट्यूब को नरिश करेगा और गाइड करेगा। कंडक्टिंग ट्रांसमिटिंग टिश्यू स्टाइल का वो टिश्यू हो गया जो पॉलन ट्यूब को नरिश और गाइड करेगा। तो ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था, यानी कि ओवरी तक तो पहुंच गया लेकिन ओवरी के बाद उसे ओव्यूल में भी तो जाना है ना। तो ओव्यूल में पॉलन ग्रेन 3 तरीके से एंटर कर सकता है। यहां पर ओव्यूल में एंटर करना है उसे, तो उसके पास 3 रास्ते हैं। पहला है चलाजल साइड के थ्रू जाना। तो हमने पढ़ा था कि 2 एंड था, एक ऊपर वाला चलाजल या उसके ऑपोजिट वाला माइक्रोपाइलर। तो अगर चलाजल साइड से जाएगा पॉलन ट्यूब तो उसे कहेंगे चलाजोगेमी, दैट इज इन दिस केस।
तो इसका एक कॉमन सा एग्जांपल है कैशुअरिना, लेकिन ये कॉमन नहीं है। सबसे कॉमन जो है वो पोरोगेमी होता है, यानी कि जो माइक्रोपाइल होता है, जो हमने देखा था, जो कि माइक्रोपाइलर एंड जिसे भी हम कहते हैं। तो जिस साइड एम्ब्रियो सैक का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है या ओव्यूल का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहां से एंटर करता है पॉलन ट्यूब, और ये सबसे कॉमन है। तो इसमें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम लिली का एग्जांपल यहां पर दे सकते हैं, लेकिन ये सबसे कॉमन है, लगभग सभी में होते हैं। अब इसके अलावा एक और तरीका है जिसे कहते हैं हम मीजोगेमी। तो यहां पर हमने जब ओव्यूल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि ओव्यूल पर नॉर्मली दो इंटेग्यूमेंट पाए जाते हैं। तो इंटेग्यूमेंट को अगर पियर्स करके, यानी कि इंटेग्यूमेंट्स को उसमें छेद करके जब पॉलन ट्यूब जाएगा तो उसे हम बोलेंगे मीजोगेमी। और मीजोगेमी का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कुकुरबिता। सो दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड बाय नाउ। लेकिन जब ओव्यूल के अंदर गया तो हमें ये भी तो पता है ना कि ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक, तो उसे अल्टीमेटली पहुंचना है एम्ब्रियो सैक तक। तो ओव्यूल के अंदर भी उसको गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था एग सेल के दोनों तरफ दो सिनर्गिड्स होते हैं। तो सिनर्गिड्स में के अंदर फिलीफॉर्म अपैरेटस होते हैं, और वो सिनर्गिड्स कुछ सिक्रीशन को सिक्रीट करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं। तो ओव्यूल के अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो उन्हीं सिक्रीशन की मदद से एम्ब्रियो सैक की तरफ जाता है, और फिलीफॉर्म अपैरेटस उसे अट्रैक्ट करते हैं। अब जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा तो सबसे नीचे में हमने देखा था कि वहां पर 3 सेल होते हैं, एक एग सेल होता है और 2 सिनर्गिड होता है। तो या तो इन तीनों में से किसी एक सेल में ही एंटर करना पड़ेगा पॉलन ट्यूब को। तो यहां पर ये एंटर करता है, दोनों में से किसी भी सिनर्गिड में एंटर करेगा, यानी कि उस सिनर्गिड्स को पियर्स कर देगा या उसमें छेद करके एंटर करेगा जो हमारा पॉलन ट्यूब है। तो अब पॉलन ट्यूब पहुंच गया उसे जहां पर पहुंचना था, यानी कि ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक तक। तो वहां पर पॉलन ट्यूब में हमें पता है कि आगे में मेल गैमीट्स होता है, और मेल गैमीट का काम है फर्टिलाइजेशन करना एग सेल के साथ। सो नाउ वी हैव सीन द इवेंट्स व्हिच लीड टू फर्टिलाइजेशन। नाउ वी आर गोना सी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड हाउ फर्टिलाइजेशन अकर। तो अभी तक हमने ये देख लिया है कि जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक के यहां पर है एग सेल, एग सेल के दोनों साइड में है 2 सिनर्गिड्स। तो पॉलन ट्यूब आ गया है यहां तक, जो पॉलन ट्यूब है वो यहां तक आ गया है। तो अब इसे करना है फर्टिलाइजेशन। तो यहां पर आगे में 2 मेल गैमीट्स होते हैं, जो कि हमने पॉलन ग्रेन जब पढ़ा था तभी पढ़ लिया था। और आगे में जो 2 मेल गैमीट है वो कैसे फर्टिलाइजेशन करेंगे और किस सेल को फर्टिलाइज करेंगे, दैट वी आर गोना स्टडी लेटर। सो अब हमने जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं इन द केस ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है।